what do we say? In terms of oxygen and hydrogen, can someone help me with that? Sir, oxidation means addition Addition of of oxygen, oxygen. Okay. reduction of What is hydrogen. alternative of addition of oxygen, beta? Reduction of Removal hydrogen. of hydrogen. Yes. 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 So if I say that oxygen is being added, or if I say hydrogen is being removed, isn't it the same thing? Yes. Yes. Hey, beta, daru. See, we're talking about positivity and we get alcohol. What beautiful start of the day it is. Beta, alcohol का functional group क्या होता है? OH. OH. अगर इस OH में से somehow I managed to remove the hydrogen, will I not say that I have done oxidation of alcohol? Yes. Yes. Because oxidation is removal of hydrogen. देख बेटा, ये अल्कोहल है, ये OH ग्रुप है. इस OH ग्रुप में से अगर मैंने ये H निकाल दिया तो ऑक्सीजन और कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो आपस में डबल बॉन्ड बना देंगे. आपस में डबल बॉन्ड बना देंगे मतलब कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा. कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा तो इट विल लीड टू एन एल्डिहाइड और कीटोन. Yes. Yes. ही राइट बेटा. अच्छा, what do we mean by primary alcohol and secondary alcohol? So primary alcohol and only one alkyl group is there, and secondary we have two alkyl groups or aryl groups, whatever. Okay, so primary alcohol and secondary alcohol में difference ये होता है बेटा, the OH group जिस कार्बन एटम को अटैच्ड है, that is your alpha carbon atom. That is your alpha. Carbon. अल्फा मतलब फर्स्ट कार्बन एटम जिसको फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, उसके जस्ट इमीडिएट कितना अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है डिसाइड्स वेदर इट इज प्राइमरी और इट इज सेकेंडरी. सो if one alkyl group is attached, it is primary. If two alkyl groups are attached, it is secondary. Beta, what if three alkyl groups are attached? Tertiary. Tertiary. Very good. What if four alkyl groups are attached? Quaternary. Quaternary. But will it be alcohol if four alkyl groups will be attached? नहीं ना, एक OH तो लगेगा ही ना बेटा अपने को अल्कोहल बनाने के लिए. अगर इसको निकाल के R लगा दूंगा तो फिर तो ये अल्केन हो जाएगा फिर से. So there are only primary, secondary and tertiary alcohols. Quaternary alcohols करके कुछ होता नहीं है. ठीक है बेटा? Yes. ये बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. So it is as simple as that. So whenever in examination, see beta, life is not going to be easy. Okay, that we need to understand that. So in examination they will not tell you ki explain or write the method of preparation of aldehyde and ketone from oxidation of alcohol. अगर इतना easy होता तो फिर सब लोग टॉप ना कर जाते बेटा, right? वो लोग आपको एक रिएक्शन देंगे, आपको यहाँ पे अल्कोहल दे देंगे और बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या होगा. तो ये अपने को पता है, अल्कोहल में OH होता है, ऑक्सीडेशन मतलब आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो अपने क्या करेंगे, अपने इसमें से हाइड्रोजन निकाल देंगे. वी विल सी वेदर इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल और अ सेकेंडरी अल्कोहल. डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल गेट अ अल्डिहाइड और कीटोन. ये बेटा प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, बाकी दोनों हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे. So when I do this, from primary alcohol I get a aldehyde, and from secondary alcohol I get a ketone. This is the general formula of aldehyde and ketone जो हमने कल डिस्कस किया था, right? Yes. Yes. I hope everybody has written this general reaction. Now, so primary alcohol and secondary alcohols, ये आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है इन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स. वो चैप्टर हो गया है अल्कोहल्स वाला. Yes. बेटा मैंने कल आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जितना रिएक्शंस बुक में है उसका आधा ही याद रखना है. क्यों? क्योंकि आधा आर रिपीटेड. सो अल्कोहल का प्रॉपर्टीज में, सो when we study the oxidation of alcohols, we have already studied that aldehyde and ketones are the products of oxidation of alcohol. राइट बेटा? तो ये आपको वहां से याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. अच्छा बेटा.
I told you alpha hydrogen. This is the alpha carbon atom. Anything attached to the alpha carbon atom will automatically become alpha. ए बेटा, functional group is attached to this carbon atom. This carbon atom is your alpha carbon atom. The hydrogen, the alkyl groups attached to the alpha carbon atom will be called as the alpha groups. Alpha hydrogen हो सकता है, alpha alkyl हो सकता है. Am I clear? Yes. Yes. अच्छा, यहां देखें, ये लोग अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं. ये बेटा अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं ये लोग. तो अल्फा हाइड्रोजन H निकलेगा, ये भी H निकलेगा, ये O के साथ वो H2O बना देगा, and this O is going to form a double bond to give you a carbonyl group. See, what is alpha hydrogen? Hydrogen atom attached to the carbon atom attached to the OH group. अच्छा, अब बेटा, when we are carrying out oxidation, we will need a strong oxidizing agent, Yes. right? अच्छा, we have studied in DNF block elements that strong oxidizing agents are potassium permanganate and potassium dichromate. Yes, sir. What is the H plus denoting over here? Can anybody tell me? Sir, release of H plus ion. No, beta, it is telling you that this is acidified potassium permanganate and acidified potassium dichromate. H plus is telling you that we are using it in a acid solution. Okay, बच्चे? Yes, sir. You remember हम लोग 11th में redox reactions balance करते थे, acid medium, basic medium? Yes. नहीं? Yes, yes. Akshay, you haven't Yes, studied sir. 11th, beta? Okay, okay. Others, do you remember? Yes, yes. Yes, sir. अच्छा, ये देखो, pyridinium chlorochromate PCC और acidified potassium dichromate और acidified potassium permanganate. अभी ये pyridinium chlorochromate PCC आपको याद रखने का जरूरत नहीं है. आपको याद रखना है कि when I am making a aldehyde and ketone from primary or secondary alcohol respectively, I will need a strong oxidizing agent because in this reaction oxidation is occurring. And this and I have learned that potassium permanganate and potassium dichromate when used in the acid medium act as strong oxidizing agent. What is a strong oxidizing agent? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाए. ये सामने वाले का Yes. हाइड्रोजन निकाल लेगा. ए I hope you are noting all this. Yes. Primary is 1 alpha, this is 2 alpha. अभी कौन सा निकलेगा? ऐसा कोई रूल है कि कोई भी निकल सकता है? हाँ बेटा? सर अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा नीचे और वो OH फंक्शनल ग्रुप नहीं वाला. बेटा, देख बेटा, 2 अल्फा है ना. आई एम आस्किंग कौन सा निकलेगा? कोई भी निकल सकता है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है. ठीक है, बोथ आर अल्फा हाइड्रोजन. नीचे का निकले, ऊपर का निकले, बद्दा निकल जैसे. ठीक है, दोनों निकल जाएगा. You do not write PCC, you write this only. ठीक है, Yes. दो चीजें पॉसिबल है बेटा. अगर उसने एक हाइड्रोजन लूज किया, अगर उसने एक हाइड्रोजन लूज किया तो अल्डिहाइड बनेगा. अगर उसने दोनों हाइड्रोजन लूज कर दिया और ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन भी यहीं पे हमने सीख लिया बेटा. ये कोई अलग से सीखने की जरूरत नहीं है. अगर मैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करूंगा सॉरी, अगर मैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करूंगा, आई विल गेट अल्डिहाइड. एंड इफ आई डू नॉट कंट्रोल द ऑक्सीडेशन, द एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी कार्बोक्सिलिक एसिड. अरे Yes, sir. लिख लिया ये. Done, What am I sir. making?
I am making a aldehyde from a primary alcohol. Acha, can someone tell me what is going to be the product? What is going to be the product when I oxidize? When I oxidize प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल को जब मैं ऑक्साइड करता हूं कौन सा अल्डेहाइड? The answer should have been very swift, but my students are still. सर अरे प्रोपेनॉल से प्रोपेनाल मिलेगा ना, कल हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया था बेटा इसका, यस राइट? OL निकाल करके AL डाल देने का ना. सर बट टर्शरी अल्कोहल में से नहीं मिलेगा अल्डिहाइड या कीटोन? क्या बचे? सर टर्शरी अल्कोहल से नहीं मिलेगा टर्शरी से नहीं मिलेगा, तो we, that is why we have specified in the beginning ना बेटा कि primary and secondary we are using over here. Primary for aldehydes and secondary for ketones. Why we need secondary for ketones? Two alkyl group is attached. That's Absolutely. Ketone is RCOR dash and aldehyde is RCHO. प्राइमरी के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है जो मेरे को अल्डिहाइड में भी दिखता है, तो इसीलिए अल्डिहाइड के लिए प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन के लिए सेकेंडरी अल्कोहल. These aldehydes ना, they are susceptible to further oxidation. जहां पे डबल बॉन्ड्स आते हैं ना, वो कंपाउंड्स आगे भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसीलिए कंट्रोल्ड अपने को रिएक्शन करना होता है, कंट्रोल्ड रिएक्शन करना होता है. सर बॉन्ड ब्रेक होना पर मुश्किल है ना फिर फर्दर अगर होगा तो? डबल बॉन्ड है ना. डबल बॉन्ड तो और इजीली टूटता है ना बेटा. यस ये बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल बॉन्ड बच्चे? एनीवन? सर दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से और एक पाई है, मतलब पेयर है इलेक्ट्रॉन का. One sigma and one pi. Double bond means one sigma, one pi. Triple bond means one sigma and two pi. There can never be two sigmas in a double bond, beta. What is a double bond? A double bond is one sigma and one pi. What is pi bond? It is because of the lateral overlap of p orbitals. Yes. Right, beta? And it's a weak Yes. bond. It can be broken very easily, right? Yes, sir. Yes. Alkenes or alkynes, why are they more reactive than corresponding alkane? Because they are unsaturated. Because they have pi bonds. They have double, triple Yes, bonds. sir. है ना बेटा? Yes, sir. समझा. तो जहां डबल बॉन्ड आया वहां पे रिएक्शन, जहां पे ज्यादा रिएक्टिवनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. ओके, तो अगर मेरे को अल्डिहाइड नहीं, मेरे को फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो मैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं करूंगा, उसको होने दूंगा, होता रहे जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता है ना. आज एग्जांपल इथेनॉल का अगर मैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करूं इन पीसीसी, आई गेट इथेनॉल, ये निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये H भी ये दो H निकल जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, एंड यहाँ आई गेट अ डबल बॉन्ड. दे हैव नॉट शोन द वाटर मॉलिक्यूल ओवर हियर. एंड इथेनॉल को अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में करूंगा तो एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इथेनोइक एसिड. सो हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बेटा. इट डिपेंड्स आपको एरो के ऊपर क्या देने वाले हैं, OPCC या KMNO4. So if you get KMNO4, the end product is going to be ethanoic acid, and if it is PCC, it means it's controlled reaction and it's going to be a aldehyde. Can we remember this? Yes, sir. yes, sir. सर वो जो इथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन है नीचे, और फिर बट OH से ही बॉन्ड शिफ्ट होगा ना डबल बॉन्ड बनाने में, वो हाइड्रोजन का बॉन्ड. हाँ बेटा, देख I'll tell you. ये निकलता है हाइड्रोजन. Yes. This hydrogen will come out. This hydrogen will also come out. मैंने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था उसने रेडिली नेसेंट ऑक्सीजन बनाया था. Yes.
MnO4 भी हमने देखा था, it forms nascent oxygen. Nascent oxygen. Okay, this nascent oxygen will combine with the released H2. दो हाइड्रोजन एटम जो रिलीज हुए थे उनके साथ कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, फिर ये ऑक्सीजन अकेला हो जाएगा और ये यहाँ पे Yes. डबल बॉन्ड बना लेगा। Yes, sir. बच्चों समझे? Yes. Yes. अमन, अस्मिता, दर्शना, जॉसलिन, केदार, मानस, मनोरथ, सानिका, पीयूष, प्रचेत, प्रणाली, अवध, योगेश, Yes, sir. Sharon. How are you, Sharon? Long time no see. Fine, sir. गौरव, समझ रहे हो बेटा? गौरव का माइक कनेक्टेड नहीं है, शायद पीसी से होगा वो, कोई बात नहीं। I hope you have written this. Yesterday we did the IUPAC nomenclature. Ethanol is the aldehyde. Acids का हमने नहीं किया, वो बाद में करेंगे हम लोग। Secondary alcohol से मुझे क्या मिलता है बेटा? I get a ketone. Ketone. Because there is only one alpha hydrogen atom over there ना। ये देखो, ये देख बच्चे, यहाँ पे क्या होगा? दिस हाइड्रोजन विल रिमूव, दिस हाइड्रोजन विल रिमूव, नेसेंट ऑक्सीजन के कंबाइन करके वाटर बनाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड आई गेट अ कीटोन। Isn't it easy? What I want you to do is I want you to circle this with this hydrogen and then put a plus sign and circle with this oxygen, ताकि आपको पता चले कि ये जा कहाँ रहा है और बन क्या रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो राइट प्लस H2O। लिखो नहीं लिखो चलेगा, बट अगर लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको पता रहेगा कि वो कहाँ गया। ऐसी हवे में थोड़ी उड़ जाएगा बेटा। मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना। Yes, sir. लिखा तुम लोग ने? एक बार लिख के मुझे बताओ, कोई भी एक जन बताओ, अक्षर दिखाओ कैसे लिखा है आपने। अदर्स ऑल्सो। Sir, मैं लिख लिखा बेटा? Yes, sir. दिखाएं? तुमने दिखाया था क्या मेरे को? एक मिनट ना, अबे ये फोकस, एक मिनट, बहुत आया अंधेरा है। अच्छा, व्हाट आई वांट टू डू ओवर हियर इज बेटा, दोनों हाइड्रोजन्स को ग्रुप करो एंड ग्रुप इट विद द ऑक्सीजन ऑन द एरो। Okay, sir. है ना? सो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बीइंग रिमूव्ड एंड बॉन्ड कहां पे बन रहा है। ठीक है बच्चे, यू कैन स्विच ऑफ द कैमरा नाउ बेटा। ओके गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड क्या करना है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? ये बेटा हमेशा खुद, यू नो व्हाट, आई वन ऑफ योर फ्रेंड्स, हिज नेम इज आशुतोष, this guy, what he does is he makes his own notes while studying, which is a very good habit beta. So once you make your own notes now, it is very nice to revise also and to keep it handy also. तो क्या बेटा? सारंग, मी पण बनवतो. मी पण बनवतो, प्रचेत पण बनवतो। मुझे लगा तू सिर्फ एडिटिंग करता है मेरे लिए, बट कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो प्रचेत भी बनाता है अपना सुपरस्टार। प्रचेत इज अ सुपर टैलेंटेड पर्सन इन आवर क्लास। People underestimate him, but I know he's a darling. And I totally understand there must be many much more talented people in our class. They are just not showing their talent. So yes, that's good. ये लिख लिया guys, can we go ahead? Yes, sir. So ऑक्सीडेशन से कैसे हम लोग बनाएंगे, सबको समझा? Yes. Yes. अच्छा, तो बेटा अल्कोहल से दो तरीका है, आइदर यू ऑक्सीडाइज द अल्कोहल और यू डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स।
ये बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमने देखा हाइड्रोजन वाज बीइंग रिमूव्ड। डीहाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। Yes. ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। Yes. Yes. अलग अलग क्यों बोल रहा है अपने को? दोनों का मतलब तो एक ही है। ये देख, ये बेटा दारू, दिस इज अल्कोहल, this is alcohol. It can be a primary alcohol, it can be a secondary alcohol. How will I decide whether this alcohol is primary or secondary? अमन चला गया, वो था। चल कोई नहीं। शारन बेटा, tell me how will I decide whether this alcohol is primary or secondary? Sir, if this alcohol is attached to two alkyl groups, then it is secondary alcohol. If Very it's good. attached to one alkyl group, then it is primary alcohol. Perfect बेटा, perfect, very good, excellent, excellent. ठीक है, तो now it can be a primary or it can be a secondary. What is silver and copper over here acting as? They are acting as catalyst. ये बेटा Catalyst. डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, ये अब तक हमको पता हो जाना चाहिए था। Yes. ओके, यहाँ देखें dehydrogenation. Now what are we doing? We are doing exactly the same thing that was being done before. It is just that now I am not using a oxidizing agent, I am just using a catalyst over here, and I am cutting off the two alpha hydrogen and the hydrogen attached with the OH ring. So I will get this. We are using metal catalysts over here. So that is the only difference. Beta, can I call this, or can I call this also as oxidation only? Yes, yes. No. Sir, repeat. Can I call this reaction also as oxidation only? Yes. Exactly, because hydrogen remove हो रहा है ना. The only thing we are classifying it differently is, पहले वाले में I am using oxidizing agent, दूसरे वाले में I am using a metal catalyst. That is different. ये बेटा हम लोग ने 11th में, जब आपने ध्यान नहीं दिया होगा बट मैंने डेफिनेटली पढ़ाया है कि हर एक कैटलिस्ट जो हम लोग यूज करते हैं अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग इफेक्ट देता है। वो कैटलिस्ट्स आर केस स्पेसिफिक, दे आर रिएक्शन स्पेसिफिक। Say yes. Yes. Don't say yes for the sake of it, but did you understand what am I trying to say? एक रिएक्शन में जब हम लोग अलग अलग कैटलिस्ट यूज करते हैं तो अलग अलग इफेक्ट आता है, डिपेंडिंग कि भाई कैटलिस्ट का रोल क्या है। यहाँ पे पहले वाले ने नेसेंट ऑक्सीजन दिया, इस वाले ने नेसेंट ऑक्सीजन नहीं दिया, इस वाले ने अल्कोहल को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब किया और उसके हाइड्रोजन के बॉन्ड्स तोड़े। अल्टीमेटली दोनों ने ऑक्सीडेशन किया बट अपने अपने तरीके से। Yes. ठीक है बच्चों, Yes. ये देखो So यहाँ पे alcohol ये होगा vapors. क्या बेटा? Alcohol vapors. अल्कोहल व्हाट बेटा? यू वांट अल्कोहल? Vapors. Vapors. अल्कोहल वेपर्स यू वांट? Yes, sir. So they have given in textbook that alcohol in dehydrogenation, alcohol vapors are used and that they are passed So through the catalyst. I'll explain that part. You remember when we were learning adsorption in 11th standard, we had a subpart called as catalysis. Everything is related, beta. Though when we studied about adsorbate and adsorbent, we said that the adsorbent should be solid and the adsorbate should be gaseous for quicker adsorption. Yes. What happens in catalysis? The reactants, they get adsorbed on the surface of the catalyst. यहाँ पे मेरा catalyst Yes. metal है, तो that Yes. means it is the adsorbent, और मेरा adsorbate कौन हो जाएगा? Reactant, जिसको मैं vapors के फॉर्म में लूंगा तो जल्दी adsorption होगा और जल्दी reaction होगा। Yes, sir. समझा गया. Yes. समझे बेटा? That is why I am taking दारू का भाफ। ये बेटा understanding. So when I say daru, I am not Yeah. meaning daru, I am meaning alcohol. It is just to relax your mind a bit, beta. ठीक है? Yes, yes. Yes, sir. Guys, I hope I'm making sense and you're understanding things. Jocelyn, Yes, sir. Manas, Mano, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. प्रचेत करते ना बड़ा। Sharon, Sahil, Tanmay, Yes, sir. Yes, Guru, sir. करते हो सर. कळलं ना? कारण आपण हा. रिएक्टंट
जर आपण रिएक्टन्स गॅशियस फेज मध्ये घेतला आणि आपला कॅटलिस्ट सॉलिड आहे तर आपला रिएक्शन फास्ट होईल. कारण कॅटलिसिस म्हणजे काय? कॅटलिसिस म्हणजे ऍड्झॉर्प्शन आपण 11वीत केलं होतं ना बाळा. आणि ऍड्झॉर्प्शन आता बघ, पाण्यावरची धूळ आणि टेबलवरची धूळ कोणती जास्ती स्ट्रॉंग असते? टेबलवरची ना. पाण्यावरची होऊन जाते, ते पण ऍड्झॉर्प्शन आहे. आता दिवाळीची साफसफाई करताना तुमच्या घरात कपाटावरून धूळ साठी तुम्ही, हा सर खूप धूळ आहे. ते पण ऍड्झॉर्प्शनचा एक एक्झाम्पल आहे ना बाळा. तर ऍड्झॉर्प्शन फास्ट कधी होते? जेव्हा आपला ऍड्झॉर्बेंट सॉलिड आहे आणि आपला ऍड्झॉर्बेट हा गॅशियस असतो. ए बेटा, डस्ट पार्टिकल्स आर अ पार्ट ऑफ द गॅसेस. Guys, are you understanding what am I trying to say over here? Yes, sir. यस यस राइट. सो बच्चों, इसीलिए हम लोग अल्कोहल का फ्यूम्स यूज करेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग अ सॉलिड कैटलिस्ट ओवर हियर टू speed up the reaction. So when these gases get absorbed on these solid catalysts, the H2 bond breaks and you get a corresponding aldehyde and ketone. Depending, आप primary alcohol use करोगे तो aldehyde, secondary use करोगे तो ketone. And since two hydrogen atoms are being eliminated without combination with oxygen, that is why we are calling it as dehydrogenation. पहले वाले को ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे थे? बिकॉज 2 हाइड्रोजन निकल के नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हॉटर मॉलिक्यूल दे रहा था. Molecule. यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है. Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा -H2 मतलब H2 इज रिलीज ना. मैं -H2 यहाँ लिखूं या फिर यहाँ पे +H2 लिखूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग. Yes, sir. ये बेटा ये देख, दिस इज -H2. माइनस मतलब ये निकल गया इसमें से निकला मतलब यहाँ ऐड हुआ ना प्रोडक्ट में. Yes. Yes. चलो लिख लिया. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया. एग्जाम्पल देखें. ethyl alcohol. Now, can someone give me the product for this? ethyl alcohol को मैंने कॉपर के साथ हीट किया. अभी बेटा देख, ऐसा दिया रहेगा एग्जाम में, और एरो के ऊपर कॉपर दिया है, एरो के ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट दिया है, एरो के ऊपर पीएसएस दिया है. पीएसएस था क्या था वो? व्हाट वाज दैट फर्स्ट दिस थिंग? PCC. पीसीसी. हाँ, कोई बात नहीं बेटा, पीसीसी पीएसएस वन एंड द सेम थिंग. पीसीसी दिया है. अगर एरो पे पीसीसी रहेगा तो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट? अक्षय नायर. झोपला. अनिरुद्ध सुरेश. मिश्रा जी आ गए लेक्चर में. यस सर. कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था पर तुम थे नहीं तुम्हारी तारीफ सुनने के लिए, तो योर बैड लक. सर सुबह 5 बजे उठा तो 7 बजे सो गया. 5 बजे उठे तो 7 बजे सो गए, ये कौन सा अलार्म क्लॉक होता है भाई? नींद आ गया. कोई बात नहीं बेटा, सोना नहीं है. तुम्हारी उम्र में नींद नहीं आनी चाहिए. तुम्हारी उम्र में जोश होना चाहिए आंखों में, एक सपना होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कुछ हासिल करने का. यस सर. हाँ भाई, टीवी बंद करो नालायक, म्यूट करो. अक्षय. Yes, sir. हाँ बेटा, अगर इसमें पीसीसी होता, अगर एरो के ऊपर, तो तुम प्रोडक्ट क्या लिखते बेटा? Sir, ethanol. इथेनॉल. वेरी गुड. और अगर पोटेशियम परमैंगनेट होता तो प्रोडक्ट क्या लिखते बेटा? सर तो भी ethanol ही लिखते हैं. नहीं, अगर पोटेशियम परमैंगनेट होता तो बाय कंटिन्यूड इससे अपने को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता? कार्बोक्सिलिक एसिड. Carboxylic acid. हाँ, yes. इथेनॉल वुड बी द फर्स्ट. करेक्ट, दैट इज राइट. अच्छा, अब यहाँ पे कॉपर आया, अब क्या लिखोगे आप? तीनों केस में रिएक्टेंट सेम है, बट मेरा जो कैटलिस्ट बोलो या रिएजेंट बोलो वो चेंज हो रहा है. Yes. सर प्लस H2 भी आएगा लिबरेटेड में. हाँ, प्रोडक्ट बता ना भाई, वो तो ठीक है. Ethanol. वेरी गुड, वेरी गुड. ये बेटा पूरा वर्डन अक्षय के ऊपर क्यों? बाकी लोग भी बोलो ना आंसर बेटा प्लीज. वो मेरे लेक्चर में आना बंद कर देगा, वो बोलेगा साला मेरे से ही बात करता रहता है बस. आई एम सॉरी अक्षय, बट नोबडी इज रिवर्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू. Sir, no, it's fine. सर इतना ना यार, अभी बोला नालायक आंसर आने के बाद. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बिजी विद योर फोन विद समथिंग एल्स, आई नो दैट.
करा दो सर। आई कैन बेयरली हियर यू। हाँ बेटा, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है अक्षय नायर। अभी आ रहा है? हाँ अभी ठीक से आ रहा है। Yes, yes. इथेनॉल इज फॉर्म। अच्छा अक्षय नायर, टेल मी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा? कीटोन मिलेगा कि एल्डिहाइड मिलेगा? एंड व्हाई? Sir, एनीवन कैन टेल मी? अस्मिता, भाविनी, दिशा, गौरव, जॉसलिन, किंजल। ए बेटा किंजल, यू वर नॉट देयर दैट डे। प्रचेत, प्रवीण, श्रेया, शैरन, No, sir. तनुश्री, तेजस्वी, विनायक। Acetone. हाय, Acetone. कीटोन मिलेगा बेटा। वाई तनुश्री, कीटोन क्यों मिलेगा बेटा? नहीं acetone. अरे मेरी बच्ची, एसीटोन कीटोन ही तो होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि कीटोन क्यों मिलेगा? What is the reason? You are right. What is the reason I'm asking? चलो, can someone assist Tanashri over here? अमन, आप उसके आंसर को यस योगेश बोलो बेटा। Yogesh, I cannot hear you beta if you are speaking something. I can see you are unmuted, but I am hardly able to hear you. I think there is some issue with his mic. He had raised hand. हाँ बच्चा, what is the reason दर्शना, केदार, मानस, क्यों कीटोन मिलेगा सेकंड केस में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में? सेकेंडरी अल्कोहल। Sir, because two alkyls are attached. Yes, this is a secondary alcohol. How did I come to know this is a secondary alcohol? The carbon atom to which OH is attached, उस कार्बन एटम के साथ दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। यहां देखें, दिस इज द कार्बन एटम जिसके साथ OH अटैच्ड है और इस कार्बन एटम के साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो दो हाइड्रोजन अटैच्ड है मतलब प्राइमरी। एक और क्या बोलते, सॉरी, दो हाइड्रोजन एंड एक अल्काइल। एक अल्काइल मतलब प्राइमरी, दो अल्काइल मतलब सेकेंडरी। एम आई क्लियर गाइस? Yes. Yes. सभी को ये बात जहन में बैठ चुकी है? Yes, sir. एग्जाम्पल्स लिख लिया आपने? Yes. Yes, sir. Done, sir. स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो? झूठो लिखा सर नहीं sir. लिख रहे हैं। हैं? सर पीछे का स्लाइड लो ना। क्या बेटा? पीछे का स्लाइड लो। पीछे का? हाँ ये लो बेटा। हो गया। हो गया बेटा? यस सर। हाँ जी। कैन वी गो अहेड बेटा? अच्छा, अब देखते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट ये हमने 11th में भी किया है। हेलो, यू रिमेंबर गाइस? Yes. जब हम लोग अल्कीन्स का रिएक्शंस पढ़ रहे थे 11th O3 स्टैंडर्ड में, तब ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स करके एक रिएक्शन देखा था हमने। व्हाट इज ओजोनोलिसिस? अल्कीन्स का O3 जो से डबल रिएक्ट। बॉन्ड है, अल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड है वो O3 मॉलिक्यूल तोड़ता है। अरे Yes, sir. लिसिस मींस ब्रेकिंग। ओजोन मतलब O3, अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। Yes. Yes. तो ऐसा नाम से याद रखने का ना बेटा, डरने का को। ओजोनोलिसिस, this is what in front of you, this is a alkene, alkyne, alkane. Justify please. Alkene. डबल बॉन्ड है अल्कीन। This is a alkene. Why is this a alkene beta? Because there is minimum one carbon carbon double bond. Yes. Yes. The R and R dash can be hydrogen. यस। Yes, it can be. वो हाइड्रोजन रहेगा तो पहला वाला अल्कीन मिलेगा ना मेरे को, इथीन।
Yes. और जब वो दूसरे अल्काइल होगा तो मुझे दूसरा करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा अल्किन्स Yes, yes, राइट. yes. तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कीन्स, जहां पे ये हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन हो सकते हैं, कोई 2 हाइड्रोजन, बाकी के 2 अल्काइल ग्रुप्स, सारे अल्काइल ग्रुप्स, एनीथिंग कैन हैपन, राइट. सो इट्स अ जनरल रिप्रेजेंटेशन. So when you guys say a yes, I feel you have understood and I can go ahead. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. Okay. अभी भी नींद नहीं खुली है क्या तुम लोग की? No. मैं आज बहुत लेट उठा बेटा, आज मैं 6:30 बजे उठा. ओजोन, ओजोन इज O3. O3. ये देखो, एक स्टेप में नहीं होता है. पहले क्या होता है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ओजोन ऐड होता है. ओजोन ऐड होता है और एक ओजोनॉइड बनता है. दिस ओजोनॉइड इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड. ठीक है. Yes. उठता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, and I get corresponding aldehydes and ketones. I'll get aldehydes and ketones. ए बेटा, ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क क्या है, कोई बता सकता है मुझे? इस अल्कीन और इस अल्कीन में फर्क क्या है? ये बाद में देखेंगे आगे का. पहले मुझे इस अल्कीन और इस अल्कीन में फर्क बताओ. एक हाइड्रोजन है. ऊपर वाला फॉर्मल्डिहाइड है. अल्डिहाइड और कीटोन नहीं बेटा, मैं अल्कीन को देखने को बोल रहा हूँ. ये वाला पार्ट मत देखो, आगे वाला पार्ट मत देखो, ये वाला देखो. ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है दिख रहा है? सब प्राइम, वो फर्स्ट वाला प्राइमरी, दूसरा वाला सेकेंडरी करेक्ट, है. बिकॉज यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, CH CH R R डैश, यहाँ पे सब R R R डैश है. तो यहाँ से जायज सी बात है, यहाँ से मुझे कीटोन मिलनी है, और जहां पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन आ रहा है वहां से मुझे अल्डिहाइड मिलनी है. मिलेगा. ये सॉरी, ये देख बेटा, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये वाला डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा. ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन की और इस कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी. ये जो ओजोन है उन एक एक वैलेंसीज के अक्रॉस ऐड हो जाएगा, ओजोनॉइड बन जाएगा. देन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, जिंक डस्ट का वाटर, दिस बॉन्ड विल ब्रेक and you get corresponding mixture of aldehydes and over here in this case ketones. ये 11th में किया है बेटा हम लोग. Ozonolysis, if you remember. Sharon Varghese, you remember? Yes, sir. ये लिख ले, ये समझा सब लोग को क्या हुआ यहाँ पे? Yes. अच्छा, have you written this? No, sir. What बेटा? Done? Done, sir. Guys, I cannot hear you. Done. Done, sir. Done, sir. Done? बहुत अच्छी बात है. I hope you have understood this. एग्जाम्पल लें, चले. आप पहले ट्राई करें अपने बुक्स में, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. अपने आप के प्रति आप, ऑनेस्ट का हिंदी क्या होता है भाई? अपने आप के प्रति आप वफादार रहें और इसका सॉल्व करके देखें आपको क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए अगर इसका ओजोनोलिसिस हुआ तो. देयर इज नो नीड टू शो द इंटरमीडिएट ओजोनॉइड, यू कैन डायरेक्टली राइट द प्रोडक्ट, बट आई वुड सजेस्ट यू मेक द ओजोनॉइड, इट इज इजियर फॉर यू टू गेस द प्रोडक्ट. देन जो आपने जनरल रिएक्शन लिखा है उसके बेसिस पे इसका प्रोडक्ट क्या होगा वो आप अपने बुक्स में बनाएं और फिर आप फाइनल आंसर से चेक करें आपको करेक्ट आया है कि नहीं. एक बार आपने बना लिया है, गैस कर लिया है, तो मुझे बोलना कि हो गया है, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूं और अपने आप ही चेक कर लेना, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है. बी ऑनेस्ट टू योरसेल्व्स.
The only person you need to be honest is with yourself. Baki rest, the world does not matter, beta. Nobody matters. Yes. Only you matters. Always remember this. I want my kids to be mentally strong and confident. Done, sir. Done, everyone? Yes. Yes. Correct, Aya? I am getting 2 Yes, sir. molecules of acetaldehyde. बच्चों कितने लोगों को करेक्ट आया ये प्लीज रेज योर हैंड्स. देयर इज अ ऑप्शन टू रेज हैंड. वीडियो चालू करके हाथ पर खड़े करने लगना. आदित्य, योगेश, अक्षय, श्रुति, अमन, जॉसलिन, आदित्य, किंजल, प्रचेत, शारन, विजय नहीं, दर्शना, अक्षय, भाविनी, तन्मय, तनुश्री. वेरी गुड. चलो आई हैव ऑनेस्ट पीपल हु आर सेइंग उनको नहीं है. वेरी गुड बेटा. आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस. देखो बेटा आंसर आता है तो खुद को कितना कॉन्फिडेंट फील होता है. यू कैन लोअर योर हैंड्स नाउ. चलें दूसरा एग्जाम्पल देखें. ये दूसरा एग्जाम्पल से हमें कीटोन मिलनी है कि एल्डिहाइड मिलनी है वो देखें. इसका भी सॉल्व करो फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको. खुद से करो, चीजों को बाय हार्ट मत करो, चीजों को समझो एंड करते जाओ. दिस इज एज गुड एज मैथ्स बेटा. लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी इजी, डोंट वरी. ओ मेरा डोला नहीं आया डोला. डन. नहीं, कैन यू हियर मी गाइस? Done, sir. Yes. इसका ओजोन बनाया है शाला के साला. इसमें क्या मिलेगा मेरे को? एसीटोन. 2 molecules of acetone. Yes. CH3CO CH3. ए बेटा ये बॉन्ड को तोड़ देने का, इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन डाल देने का, इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन डाल देने का, खत्म. इजी लाइफ है ना? Yes. कैन वी गो अहेड गाइस? सर प्रेपरेशन अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो ये ओजोनाइड बनाना है क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी. आई वुड सजेस्ट बनाओ क्योंकि आपको इजी पड़ेगा प्रोडक्ट गेस करने के लिए फिर. Yes. ओके. एंड बोर्ड्स में तो आप जितना लिखो उतना कम है रे. ऐसा है. एंट्रेंस के लिए करने की जरूरत नहीं है. सर हाँ बेटा. हेलो. हाँ बेटा. हाँ सर कीटोन में तो C डबल बॉन्ड हो आएगा ना? कीटोन में C डबल बॉन्ड होएगा. हाँ बिल्कुल. तो ये जो C है ना बेटा, ये जो C है ये डबल बॉन्ड O है यहाँ पे. फिर जो 2 बॉन्ड्स है वो CH3 और CH3 को अटैच्ड है. हाँ सर समझा. ठीक है योगेश? यस सर यस. अच्छा अच्छा चलो एक और एग्जांपल देखो. आप लोग खुद से करो बेटा. आप देखें जो ये है अभी, दिस इज 2-methyl-2-butene. दिस इज नाइदर, मतलब ये प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है, दोनों मिल रहा है. तो आर यू सजेस्टिंग कि यहाँ पे मुझे अल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर मिलेगा या दोनों कीटोन्स मिलेगा? देख बेटा एक सिंपल लॉजिक याद रखना. जहां डबल बॉन्ड है उसको तोड़ के इसको ऑक्सीजन देने का, इसको ऑक्सीजन देने का, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएगा. दैट इज द शॉर्टकट. डिटेल हमने देख लिया है, शॉर्टकट ये है. तो आप गेस करो इसका प्रोडक्ट्स क्या होगा, फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है. आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? इस एग्जांपल इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ओजोन ऐड Formaldehyde करो. और एसीटोन. एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन मिल रहा है बेटा. Yes. अरे वाह अमन, ऑनलाइन तुम ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो. तुम वही नहीं, अमन नहीं. हो ना? अरे ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से हुआ है. ये टॉपिक अच्छे से हुआ. सर अच्छा अभी सो होशियारी. के उठा. ये अभी सो के उठा है. अबे तू मेरे तेरे से घर पे पहले आया था ज्वाइन क्या? किया था उसने. कि मैं तेरे घर पे आया था. क्या बेटा? सर मैं ही गया था जगाने उसको. अच्छा ठीक है. आई वी नॉट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर लव स्टोरीज बेटा. भंगार बेचने आया था.
We will discuss offline. Let us look at the products over here. Acetaldehyde and acetone हो जाएगा बेटा, देखो सिंपल एज दैट. ये डबल बॉन्ड अलग कर देने का, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दो. कितने प्यारे एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड मिल गए हमें, है ना? Yes. मिला ये अक्षय एंड अदर्स? डिड यू गेट Yes, दिस? sir. अनिरुद्ध, भाविनी, दिशा, जॉसलिन, Yes, yes. नायर, Yes, सानिका, sir. प्रचित, ये वाला करते ना रे. हो सर. तो मने सिंपल, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ो, इस कार्बन को 2 ऑक्सीजन दो, उस कार्बन को 1 ऑक्सीजन दो, खत्म, आंसर आ गया. ठीक है. अतः हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स, ये बेटा व्हाट इज हाइड्रा? हाइड्रा मींस एक विलन है. वाटर. हाँ, Water. वाटर. वाटर. हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर. Yes. Yes. किसके अंदर एडिशन कर रहा हूं मैं? अल्काइंस के अंदर. Alkyne. Alkynes. Alkynes are those compounds which contain at least one carbon to carbon triple bond. Now, if I am adding water, I am adding oxygen also, I am adding hydrogen also. अब देखते हैं इसका हाइड्रेशन कैसे करने से हमें एल्डिहाइड कीटोन मिल रहे हैं. Addition of water to alkynes in the presence of mercuric sulfate and sulfuric acid to form aldehydes and ketones. What is mercuric sulfate and sulfuric acid doing over here? Catalyst or reagent? बताओ. Sir, reagent. Very good. Reagent, oxidizing agent. Yes. ये देख बेटा, एसिटिलीन इज द मोस्ट बेसिक अल्काइन. ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसके अंदर आपने पानी ऐड करिए. दिस इज द क्या बोलते रिएजेंट विच वी आर यूजिंग at 60 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज हैपनिंग बेटा? पहले एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा और विनाइल अल्कोहल मिलेगा विच इज अनस्टेबल. ये बेटा ये बॉन्ड टूटा तो वाटर, हाउ विल वाटर ब्रेक? वाटर विल ब्रेक इनटू H and OH. तो एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो विनाइल अल्कोहल मिल गया. Yes. ठीक है. एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा तो दो वैकेंसी फ्री हुई कार्बन कार्बन पे. एक पे हाइड्रोजन जाएगा, एक पे OH जाएगा, HOH का. आगे देखें क्या हो रहा है. सी, दिस इज unstable. This thing is unstable over here. So this bond is going to shift over here. This hydrogen is going to shift over here and I get the corresponding acetaldehyde. रीअरेंजमेंट होगा बॉन्ड्स का या फिर बॉन्ड पेयर्स का इस तरीके से. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Hey, why this is happening? Why this is unstable? Why is it rearranging itself? That question दिमाग में नहीं आता है. बाहर ही करना है सब कुछ. Sir, we want aldehyde, no? Aldehyde or ketone. We want aldehyde and ketone. No, that is okay. We want aldehyde and ketone. I am asking, why does this rearrangement happen on its own? Why am I calling this vinyl alcohol over here as unstable? Is that something to do with the lone pair on oxygen and the electronegativity difference between oxygen and hydrogen? Electromeric effect of carbon atoms. कुछ याद आ रहा है? Yes. ठीक है? Yes. तो बेटा देख, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हुए हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. सिंपल एज दैट.
and I get this acetaldehyde. लिख लिया? Done, sir. ये देखो प्रोपाइन से क्या मिलेगा मुझे? Acid. एसीटोन। आप ये बीच वाला बनाओगे ना ये स्ट्रक्चर, तो इट इज इजियर फॉर यू टू गेस। समझ रहे हो Yes, कि नहीं sir. समझ रहे? बहुत सन्नाटा हो गया, तुम लोग नहीं समझ रहे क्या ये ना? Yes, sir. समझा. ठीक, लिख लिया बेटा? No, sir. वाई बेटा? लिख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, क्या कर रहे हो बता दो मेरे को, तो उतना टाइम मैं रुकूंगा। लिख रहे sir. लिख रहे सर। वेरी गुड। Screenshot. स्क्रीनशॉट कौन है ये बेशरम? वो स्क्रीनशॉट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने से, बट बाद में लिखते हो कि नहीं मुझे वो जानना है। Yes. अच्छा, सारंग Done, sir. डन बेटा? यस सर डन। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स का एक और बनाने का तरीका। रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। व्हाट आर एसिड क्लोराइड्स नाउ? कितना बड़ा नाम दिया ना, एसिड क्लोराइड्स। ये बेटा RCOOH क्या है? एसिड है। Yes. उसका डेरिवेटिव वाला क्लोराइड RCOOH, उसमें से OH की जगह अगर मैं Cl डाल दूं तो एसिड क्लोराइड हो जाएगा। Yes, sir. RCOOH से मिला हुआ क्लोराइड मेरे को इज एसिड क्लोराइड। RCOL, अभी इसमें बेटा ये देख, इसके अंदर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। Addition of hydrogen, removal of oxygen. रिमूवल ऑफ Yes. ऑक्सीजन। बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। Yes. यस। अगर इस कंपाउंड में से यहां से क्लोरीन निकाल के हाइड्रोजन डाल दूं तो मेरे को करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड मिल जाएगा। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट is acting as the catalyst over here. Palladium again a D block element. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड कौन था बेटा? Scientist. साइंटिस्ट था, वो मंद था बेटा, ठीक है? अच्छा, what is Rosenmund's reduction? Acid chlorides on reduction giving me aldehyde. Chlorine being replaced with hydrogen in acid chloride. अरे मेरे बच्चों, लिख लिया? Yes, sir. यस सर। Yes. Aliphatic aldehyde. What is aliphatic aldehyde? ओपन चेन अल्डिहाइड, कोई क्लोज्ड रिंग उसके साथ अटैच नहीं है, राइट? Yes. अच्छा, अब इस एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड दिस इज अरोमेटिक अल्डिहाइड, ये तुम लोगों को पता है डिफरेंस? Yes. है ना बेटा? ओपन चेन अल्डिहाइड मतलब
सिंपल ओपन चेन अटैच्ड है एल्डिहाइड ग्रुप को, यहाँ पे साइक्लिक चेन। रोजनमंड रिडक्शन से हम दोनों में से कोई भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इट सिंपली डिपेंड्स कौन सा एसिड क्लोराइड आप यूज कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। ए बेटा, but we have to note one thing. You know what is that one thing? Ketones cannot be prepared by Rosenmund's reduction. तो कहीं भी एंट्रेंस में या 12th में अगर आपको एक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आया कि the compound so and so obtained is undergoes Rosenmund's reduction, what is the final product? तो अगर आपको ऑप्शंस में कीटोन दिया है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इतने लेवल का प्रिपरेशन चाहिए अपने को कि हमको ये पता होना चाहिए कि भाई रोजनमंड्स रिडक्शन में कीटोन नहीं मिलता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोला है कि द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय रोजनमंड्स रिडक्शन, मतलब इट हैज टू बी अ अल्डिहाइड। तो अगर ऑप्शंस में कहीं कीटोन है तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ए बेटा, व्हाई कीटोन नहीं मिल सकता? आई वांट यू टू लुक एट इट एंड टेल मी। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ के अक्रॉस मुझे दोनों आर आर ग्रुप चाहिए। यहाँ पे हम लोग कंपल्सरीली एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो कीटोन तो मिल ही नहीं सकता ना। ले नहीं सकता। यस, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ, समझ गए। यस, अच्छा, ये देखें कितना एसिड क्लोराइड से Sir, आवाज ब्रेक होते। पैलेडियम और बेरी फिट है। एग्जांपल देना सॉर्टेड। सर आवाज ब्रेक होते। हेलो अल्फा डेल्टा हेलो, कॉपी मी गाइस। Yes, अरे sir. भाई, यस सर। हेलो। Reporting. Yeah, reporting. Very good. Right. So you can hear me now. Good. So I don't know why that happened in between, but these are very beautiful examples of Rosenmund's reduction or simply reduction of acid chlorides for preparation of pure aldehydes, and ketones cannot be obtained. लिख लिया बेटा? यस सर। Yes. चलिए आगे बढ़े। ये देखो, अगर मुझे एसिड क्लोराइड से कीटोन चाहिए तो मैं उसका रिडक्शन मतलब उसका हाइड्रोजनेशन नहीं करूंगा, मतलब हाइड्रोजन ऐड करके नहीं करूंगा, मुझे उसको डाई अल्काइल कैडमियम करना पड़ेगा। अभी डाई अल्काइल कैडमियम इज अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। व्हाट इज अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बेटा? एनीबॉडी नोज ओवर हियर? Some metal is also there, an organic molecule, मतलब carbon is also there. Carbon Why and am I hydrogen. calling dialkyl cadmium as a organometallic compound? Because cadmium is a metal. Metal and alkyl groups is organic compound. वेरी गुड बेटा। अब देखें, अगर आपको जिद है, आप बोल रहे हो मैंने एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाया, मुझे एसिड क्लोराइड से कीटोन भी चाहिए, तो वो बोलेगा हाइड्रोजन ऐड मत कर, डाई अल्काइल कैडमियम करके एक चीज होती है वो ऐड कर, उससे तेरे को RCOR कीटोन मिल जाएगा एंड RCDCl बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। And from where will I get dialkyl cadmium? I will get it by reacting Grignard's reagent with cadmium chloride, CdCl2. Hey beta, Grignard's reagent RMGX is again an organometallic compound over here. Yes. So I get one organometallic compound by treating some salt with some other organometallic compound. Hey, सर Yes, रिपीट sir. करो ना क्या रिपीट करूं बेटा? सर। मेरे को आवाज ब्रेक हो रहा था, मेरा नेटवर्क इश्यू है। ओके बच्चे, आई रिपीट बेटा। ये देख बच्चे, एसिड क्लोराइड से हमको अल्डिहाइड्स मिला बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बट कीटोन नहीं मिलेगा।
कीटोन मुझे किससे मिलेगा? एसिड क्लोराइड से। आई विल ऐड डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल मीन्स दो अल्काइल ग्रुप अटैच टू कैडमियम मेटल। दिस इज अ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मेटल कंबाइंड, उससे मुझे कीटोन मिलेगा। अब ये डाई अल्काइल कैडमियम कैसे मिलेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब मैं कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूंगा तब मुझे डाई अल्काइल कैडमियम मिलेगा। इसको मैं यहां यूज करके एसिड क्लोराइड के साथ कीटोन ऑब्टेन कर सकता हूं। थैंक यू सर। या लिख लिया बेटा? नहीं लिखा? अरे बाळांनो लिहिलं का? सर लिख रहे हैं। सर अच्छा डन सर। डन। एग्जाम्पल देखें, methyl magnesium bromide when reacted with cadmium chloride it gives dimethyl cadmium. This dimethyl cadmium can be treated with propanol chloride. जो बताओ यहाँ पे कौन सा कीटोन आएगा? सर वॉइस ब्रेक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप लोग ने जनरल रिएक्शन लिखा है ना, तो अभी यहाँ पे बताओ, मैंने डाईमिथाइल कैडमियम तो बना लिया, अब मुझे डाईमिथाइल कैडमियम को जब मैं प्रोपेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूंगा तब मुझे कौन सा कीटोन मिलेगा? ब्यूटेनॉल। पक्का? यस। ए बेटा, आई एम गेटिंग इथाइल मिथाइल कीटोन। Yes, sir. That is a trivial name. It is same. I told That IUPAC is name. written, you are right. तो दिस इज इथाइल मिथाइल कीटोन। सीधी सी बात है, यहाँ पे मिथाइल लगेला है, यहाँ से सॉरी यहाँ पे इथाइल लगेला है, यहाँ से एक मिथाइल आके लग जाएगा, है ना? Yes. और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? उस जो एक मिथाइल बचा है उसके साथ कंबाइन करके मीथेन बना देगा। ठीक है? लिख लो तो बताना बेटा। Done? Guys? Am I Yes, sir. connected? डन सर। Okay. अच्छा, reduction of nitriles. Another way is reduction of nitriles. These are nitriles बेटा, जिनका common name क्या होता है? Cyanide, Yes, sir. है ना? नाइट्राइल से हम लोग स्टैनस क्लोराइड विद HCl, ठीक है, ये रिएजेंट्स यूज करके पहले हम लोग इमाइन बनाएंगे। उसमें से इमाइन, इमाइन है कि अमाइन है? नाइट्राइल्स, इमाइन एंड देन अल्डिहाइड। इमाइन का क्या किया मैंने? हाइड्रोलिसिस किया ना? गाइस, नाइट्राइल Sir, इज नहीं व्हाट? समझा ये वाला। हाँ बताता हूँ। अल्काइल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, दीज आर नाइट्राइल्स। Yes. C triple bond N. C triple bond N. What am I doing? I am doing reduction. I am adding hydrogen across this triple bond. तो ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा RCH NH। ठीक है बेटा? Yes. Then across this
across this I am adding a water molecule. Across in this amine I am adding a water molecule. इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं. इसका हाइड्रोलिसिस जब करूंगा बेटा तो यहाँ O ऐड हो जाएगा और ये जो N है और ये जो H है it will be removed. It will be removed. NH3 अमोनिया रिलीज हो जाएगा. ठीक है. यस सर. अरे अरे मेरे मुंह पे झाड़. एमाइन क्या है? अमाइन अमाइन अमाइंस नहीं पढ़ा तुम लोग ने? चालू है क्लासेस में. ओके. अक्षय तुम्हारा? No, sir. नो सर. ओके ठीक है. अमीनो ग्रुप पता है? ये पता है तुम लोग को? व्हाट इज NH3? अमोनिया, अमोनिया. right? Ammonia. So NH3 is ammonia, NH4 ammonium, अमोनियम. then NH, NH2, NH. These are amines. These are amines when the functional group is NH, NH2, NH3. We say ना कि primary, secondary, tertiary amines. ये basic Yes, nomenclature में yes, 11th sir. में पढ़ा रहेगा. यस सर. यस. ठीक है. There is a detailed chapter which we'll do later. This is Stephen reaction. What is Stephen reaction? Reduction of nitriles. Reduction of nitriles to give me what, beta? To give me aldehydes. Aldehyde. अगर आप करो कि बराबर लिखा. डन सर. Done, sir. एक मिनट. एक्चुअली आई हैव अ कॉल अभी थोड़ी देर में, इसलिए आई हैव टू चेक मैसेजेस. ये देखो इथेन नाइट्राइल स्टैनस क्लोराइड एंड HCl के प्रेजेंस में जब इसको हम रिडक्शन करेंगे इट गेट्स एथेनामाइन एंड ऑन विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मी एथेनॉल. सिंपल हुआ. एग्जांपल से समझ में आया बेटा क्या होने वाला है यहाँ पे? यस सर. अच्छा बेटा, अच्छा. ये देख इसका O यहाँ आ जाएगा, इसके जो H हैं वो इसके साथ अमोनिया बना देंगे. ठीक है ना? लिख लिया? डन सर. क्या क्या रिएक्शन को बोलेंगे बेटा हम लोग? स्टीफन रिएक्शन. डिफरेंट रिएक्शन. ठीक है. तो एग्जाम में दे यूज सच वर्ड्स, डू नॉट गेट स्केयर्ड. ऑल्टरनेटिवली देखो, नाइट्राइल्स को अगर मैं कोई दूसरा रिएजेंट या कैटलिस्ट यूज करूं, व्हाट इज दिस? अमाइन बनता है followed by hydrolysis also gives me aldehyde. सर रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो. Yes. DIBALH ethanamine on hydrolysis gives ethanol. बस रिएजेंट चेंज हो रहा है बेटा यहाँ पे. ये एंट्रेंस के लिए है. एक मिनट. Device is not available.
this reagent DIBALH, एक मिनट बेटा, हाँ, so DIBALH can also be used to reduce and hydrolyze ester to aldehyde. Hey beta, what is Easter? Festival? So C double bond COO. COO. CO is carbonyl. COO is ester. Ester. COOH is carboxylic acid. Carboxylic acid. ये सब फंक्शनल ग्रुप से अलग अलग. इसको डिटेल में बाद में पढ़ते हैं अपन. ये देखें, अभी नाइट्राइल से कीटोन कैसे मिलेंगे? नाइट्राइल्स को ग्रेगनार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट बनाने का, देन हाइड्रोलिसिस इज फर्दर गोइंग टू गिव मी कीटोन, अमोनिया एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड. सर वो पीछे का लिखना था. क्या बेटा? सर पीछे, हाँ ये. डन सर. अच्छा बेटा, देखो नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ये बेटा बाकी आपने ये देखा होगा स्टार्टिंग के जो हम लोग ने एग्जांपल्स देखे और ये करे ना, उन सब चीजों में ना बच्चे हम लोग को प्राइमरी सेकेंडरी सेम प्रोसेस में हो जा रहा था. बट ये लास्ट के 2-3 में देखो बेटा क्या हो रहा है, हम लोग को अलग अलग रिएजेंट्स यूज करने पड़ रहे हैं अगर हमको कीटोन और अल्डिहाइड चाहिए तो. ठीक है, तो नाइट्राइल से अगर अल्डिहाइड चाहिए तो कुछ अलग रिएजेंट है, और अगर कीटोन चाहिए तो अलग रिएजेंट है. विद एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू. लिख लिया? नो सर. ये एग्जांपल लिख लो. उसको फोन किया, ये लो, हाँ उससे पूछो, अपॉइंटमेंट ले लो. डन गाइस? डन सर. ओके, एवरीबॉडी डन ना? यस. प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स भी होता है. बेंजीन से बनाओ, एरोमेटिक एसिड क्लोराइड से बनाओ, मिथाइल बेंजीन से बनाओ, या बेंजाइल हलाइड से बनाओ. एरोमेटिक बेंजीन्स एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स हम लोग को ये 4 स्टार्टिंग प्रोडक्ट यूज करके बन सकता है. बेसिक सी बात है भाई, एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो एरोमेटिक रिंग लगेगा ही लगेगा. सो व्हाट कैन बी द स्टार्टिंग मटेरियल? इट कैन बी प्योर बेंजीन, इट कैन बी एसिड क्लोराइड, एरोमेटिक एसिड क्लोराइड, मिथाइल बेंजीन हो सकता है, बेंजाइल हलाइड हो सकता है. सिंपल एज दैट. क्लियर है? यस. अच्छा, सर वो पीछे वाला स्लाइड दिखाओ ना, लिखना है. बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स के साथ ना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास किया, ये बेटा ये वाला. यस सर. डन सर. डन. यस. ओके,
बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स को कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ड्राई HCl गैस, इन दोनों का मिक्सचर से इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, अगेन डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स. दिस इज द गैटरमैन-कॉच रिएक्शन. बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड मिलना. समझ रहे हो? यस सर. ठीक है. गैटरमैन-कॉच रिएक्शन, गैटरमैन-कॉच रिएक्शन. तो एनी आइडिया इसका बाय प्रोडक्ट कौन सा गैस बनेगा? जरा देख के बता सकते हो? क्लोरीन गैस मिलेगा ना. ये CO तो यहाँ लग गया, ये H यहाँ लग गया, Cl बच गया, तो क्लोरीन गैस मिलेगा बाहर. यस. अच्छा, लिख लिया गैटरमैन-कॉच. एनहाइड्रस AlCl3. रोजनमंड्स रिडक्शन हमने अभी देखा था बेटा. यस. ठीक है. विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट अपने को बेंजाल्डिहाइड देगा. ये अब भी देखा था. मीथाइल बेंजाल्डिहाइड हमको मीथाइल बेंजीन से कैसे मिलेगा? क्रोमिल क्लोराइड. ये क्रोमिल क्लोराइड हमने दूसरे कंपाउंड्स में भी देखा है. क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है. Okay, then on further hydrolysis gives me benzaldehyde. This is your Attard reaction. Attard. There is nothing special in the name. That is just that the scientist उसने किया तो अपना नाम कर रहा है बस, और कुछ नहीं. मिथाइल बेंजीन को हमने क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया in the presence of carbon sulfide. Carbon sulfide is the solvent which is used over here बेटा. अपने को एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो हाईली अनस्टेबल है. Then when you hydrolyze that complex, you get your corresponding benzaldehyde. ठीक है? यस. Attard reaction, methyl benzene से benzaldehyde मिलना. सर्दी जाने का नाम ही नहीं लेती. गरम पाणी प्या. क्या बेटा? गरम पाणी प्या, त्याच्यासोबत हळद टाकून. हो बेटा, मैं गर्म पानी पी रहा हूँ इतने दिन से. Now when you त्याच्यासोबत see, हळद. yes beta, now when you see this methyl benzene also reacts with chromic oxide and acetic anhydride again to give me benzaldehyde. But यहाँ पे जो मीडियम ये जो बीच पे कंपाउंड बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, बेंजाइल डाइन डाइएसिटेट, that is going to be a different complex which on hydrolysis gives me again benzaldehyde. Just certain, बस some more examples, और कुछ नहीं है. बेंजल हैलाइड्स का तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको अरोमेटिक एल्डिहाइड्स मिल जाएगा. सिंपल एज दैट. बेंजाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस, बेंजाइल क्लोराइड कहां से मिला मुझे? टोलिन का क्लोरीनेशन करने से. टोलिन का क्लोरीनेशन करूंगा, मिथाइल बेंजाइन का क्लोरीनेशन करूंगा, आई गेट बेंजाइल क्लोराइड. उसका हाइड्रोलिसिस, बॉन्ड तोड़ करके वाटर ऐड करूंगा, आई गेट द करस्पॉन्डिंग बेंजाल्डिहाइड. ये बेटा CHO, और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HCl, है ना? यस. नहीं? यस सर. अच्छा, अच्छा, चलो, लेट्स डू वन थिंग, लेट अस कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ. ठीक है? तो लिखने दो ये इतना. लिख लो, लिख लो. I have certain other commitments to fulfill. सर मेरा जो थर्मो का मिस हुआ था उसका आप वो कराओगे?
बाद में। क्या कर रहा हूँ उसका? मतलब मुझे सिखाओ ना। सिखाऊंगा ना बेटा। तुम सब लोग एक एक दिन एब्सेंट होते जाओ और रोज मुझे स्पेशली बुलाते जाओ। मैं तुम सबको अपनी गोद में बिठा के लोरियां गा करके इसको सारा रिवीजन कराऊंगा बेटा। पक्का यस सर? यस यस पक्का। हाँ सर। पक्का का क्या नालायक कहीं के। ठीक है, आज क्लास में आ जाना, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। सर पहले आऊं क्या, अगर ये आप बेटा हो तो? मेरे को थोड़ा जिंदगी जीने देना बेटा, मेरे को दूसरे काम भी है। मैं आ जाऊंगा, मैं तुम्हें पक्का करा दूंगा, डोंट वरी। मैं आज सर 8:30 बजे जिंदगी तक तो, क्लास में हूँ। सर जिंदगी तो रोज जियोगे। हम लोग का भी 8 बजे 8:30 बजे तक का लेक्चर है आज ना। मरू मतलब ऐसा? तेरे नहीं 8:30 तक है मतलब ना? 8:30 के बाद रुक बेटा, अपन दोनों 8:30 के बाद मिलते हैं, आज मस्त अपना वड़ा पाव खाते आज हैं और फिर अपना पढ़ाई टाइम करते मुझे डेडिकेट कर दो। हैं। हाँ बेटा, मेरी तो बीवी नहीं है, मैंने तुम्हें टाइम डेडिकेट करना है। सर अभी आप वहां पे मार खाओगे, इससे अच्छा मेरे साथ रहो, हम लोग एंजॉय करेंगे। Are you crazy? This is being recorded. Just shut up. Wow.